حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ ہلو ہلو جی کون؟ نور حسن صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں۔ آپ کا ویڈیو تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا صاحب شکریہ۔ ہاں تو کچھ سوال فی الحال تو ابھی ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دن میں کال کیے تھے لیکن آپ نہیں اٹھا پائے۔ اچھا اچھا فی الحال ابھی ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے سلام بھی کرنا مناسب نہیں سمجھے ہیں۔ جی 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 ہاں تو اس لیے اب کھانے پر بیٹھے ہم کیا لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں اٹھاتے کہ نہیں، اس لیے کہ دن میں لگائے تھے لیکن اس ٹائم ہم تھوڑا فرصت میں تھے، ابھی تو مصروف ہیں، کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ شک ہے، اس لیے کہ دیکھیے آمنے سامنے باتیں ہوتی ہے تو اس میں جی۔ کچھ شکیں دونوں کی طرف سے نکلتی ہے، اچھا تو کچھ شبہات ہم کو بھی آیا تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں، اس میں ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا اچھا آپ کا مسلک؟ ہاں مسئلہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی ایسے تو ہم دوسرا نمبر چلاتے ہیں، اس نمبر میں بیلنس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مسلک ہے، جی آپ کے مسلک میں آپ کے عالم میں جو بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے؟ آپ اپنا مسلک تو بتائیں پہلے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو ہم اپنا مسلک بتائیں گے، ہم کہاں کہہ رہے کہ نہیں بتائیں گے، لیکن ہم آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے عالم نے جو بات کہی ہے کیا وہ بات صحیح ہے؟ ہماری جو آپ کو بات غلط لگ رہی ہے آپ اس کو بیان کریں۔ نہیں تو آپ یہ چیز ہم پہلے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے مسلک میں کوئی چیز اگر لکھا ہوگا غلط تو کیا آپ اس کو کیا مانیے گا؟ اگر کوئی شخص پہلے آپ اپنا مسلک بتاؤ، پہلے آپ اپنا مسلک بتاؤ پھر اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ ہاں کنز ایمان آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں پڑھتے ہیں، بولو۔ ارے اپنا مسلک تو بتاؤ پہلے یار، اپنا مسلک بتاؤ پہلے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو یا کچھ اور ہو؟ مسلکن تو ہم جو ہے وہ ہیں۔ ارے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیڑھا ٹیڑھی باتیں مت کرو، ٹھیک ہے؟ اپنا مسلک بتا دو پہلے سیدھے سیدھے۔ ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پر بیٹھے ہیں تو کھانے پہ مسلک نہیں بتا سکتے ہیں؟ ہم آپ سے اس لیے دیکھیے پہلے ہم آپ کو تو سلام نہیں کیے، پھر وہی بات، میں تمہارے سلام کا جواب دیتا بھی نہیں کیونکہ میں پوچھ کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں تو اس لیے ہم ایسے شخص کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تو آپ اپنا مسلک بتا دیجئے، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا کچھ اور ہو۔ نہیں آپ ہم کو دیوبندی مانیے یا اہل حدیث مانیے یا بریلی مانیے یا کچھ بھی مانیے، ہم اتنا ہوا نہیں، ہم کو تھوڑا سا اعتراض ہوا ہے۔ فون کاٹ دو، اعتراض ہوا ہے نا تو اپنا اعتراض اپنے پاس رکھو، فون کاٹ دو۔ یعنی کہ تم اتنا جو بھوکتے ہو اس پر جو ہے نا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، سڑے ہوئے بڈھے، زبان کو ذرا لگام دے کے بول۔ لگام دے کے بول نہیں، تم جو کہتے ہو کہ ہمارے جو میں نے تجھ سے تیرا مسلک پوچھا ہے، مسلک بتا پھر اس کے بعد آگے بات کر۔ جو تجھے اعتراض ہے نا وہ اعتراض کر، شوق سے کر، پہلے تو اپنا مسلک بتا۔ تیرا مسلک کیا ہے؟ میرا مسلک ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، پہچان میری بریلی شریف سے ہوتی ہے، میں سنی حنفی بریلوی ہوں۔ بریلی شریف تو وہی چیز ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں نا، تو اگر ہمارا مسلک تم پوچھتے ہو اب تو اپنا مسلک بتا۔ ہاں تو ہم بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ تو حنفی میں کون سے ہو، دیوبندی کہ بریلوی؟ ہاں ہم حنفی میں دیوبندی سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئی نا بات کلیئر ہو کے کھل کے، اب اپنا اعتراض رکھو۔ ہاں اعتراض ہمارا صرف اتنا ہی ہے، کیا آپ کے امام احمد رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے؟ اگر اس نے غلط لکھا تو کیا اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ آئے گا؟ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ سب صحیح لکھا ہے، ان سے کوئی کفر نہیں ہے، اگر کوئی کفر ہے تو ثابت کرو۔
नहीं, अगर हम ये आपसे पूछना चाहते उसके बाद हम साबित करेंगे कि क्या अगर उसने गलत लिखा तो क्या उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा? इतना सिर्फ बोल दो, हाँ या ना। वो कोई भी हो, सबके ऊपर लगेगा, मगर तुम आला हजरत का कुफ्र साबित करो ना। तो वही हम तुमसे पूछ रहे हैं ना। अरे हाँ बोलो ना, कुफ्र साबित करो। अगर आला हजरत काफिर नहीं है और तुमने आला हजरत को काफिर माना है, काफिर समझते हो, तुम क्या समझते हो पहले आला हजरत को ये बता दो, काफिर या मुसलमान? हाँ, देखो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जबान नहीं है कि किसी पढ़े लिखे को फौरन मुंह में आया और काफिर, इसलिए कि हदीस अरबी का जुमला आता है, आना कि बर्तन में जो होता है वही टपकता है। अच्छा अच्छा, तो बर्तन में जो तुम्हारे था वो तुमने टपका दिया। अच्छा, तो वही चीज हम तुमसे पूछते हैं, कंजूस ईमान आपके पास तो होगा, इसलिए कि आप तो हमेशा ड्राइवर आदमी हैं और हमेशा कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। आलिम उसको कहा जाता है जो जानकार होता है। आलिम आलिम का मतलब है जानने वाला। अब तुम कहते हैं हम आलिम नहीं है तो तुम जाहिल हो, यही एक चीज दूसरा बन सकता है। अच्छा अच्छा, तो देवबंद के मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, मुफक्किर हैं, मुहद्दिस हैं, मुजद्दिद हैं, आप कौन है? जरा अपनी भी जो है तालीमात आप बता दें। तो भाई, हाँ भाई, हम जो है ना छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले जो है ना मकतब, हम ना कोई बढ़ के ये छोटे छोटे और बड़े बड़े की बात छोड़ो, आपकी तालीमात कहाँ तक है? मुफ्ती हो या मौलवी? हाँ, हमारी तालीम मौलवियत तक है, मौलवियत तक है। लेकिन अब अकीदा चुनो, अब अकीदा मौलवी साहब, अब अकीदा चुनो, किस अकीदे पर बात करोगे? या आला हजरत के ऊपर जो आप तंज कर रहे थे वो तंज आप बताओ। तुमने मुझसे कहा कि अगर आला हजरत ने कुफ्र कहा होगा तो उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगेगा या नहीं। मैंने तुमसे पूछा कि तुम आला हजरत को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो, तो तुमने अब यहाँ से अपनी बात में खुद गिरफ्तार हो गए हो, तुम खुद जो है वापस पलट आ रहे हो। नहीं सुनो, वही हम तुमको कह दिया ना कि हमको इतनी जबान हमारी खराब नहीं है कि किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा। अगर तुम्हारी जबान खराब नहीं होती तो आला हजरत पर तंज नहीं करते। नहीं, तंज में हम आपसे पूछना चाहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई ऐसा है, घामड़पन जरा कम दिखा करो, ठीक है? तुम्हारे देवबंदी लोग पढ़ाते क्या है तुम्हें? क्या पढ़ा है तुमने देवबंद में? क्या पढ़ा है तुमने? हम तो देवबंद कभी गए भी नहीं है भाई। अच्छा, तुम नहीं गए हो तो देवबंदियों के मदरसे में पढ़ा है? आप पढ़े हैं, लेकिन तुमको क्या पढ़ा है तुम्हें? तुमको बरेली में यही सिखाया कि बड़े छोटे की इज्जत नहीं है तुम्हारे पास। अरे गधे घामड़, मैं ऐसे किसी देवबंदी की सड़क बदबूदार की मैं इज्जत नहीं करता, ठीक है? तूने आला हजरत के ऊपर जो फतवा लगाया है कि वो अगर उन्होंने कुफ्र किया होगा तो उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगेगा, तो मैंने पूछा कि तुम आला हजरत को क्या मानते हो, तो जवाब दो इस बात का। नहीं सुनो, सामने वाला कुछ किसी को कुछ माने, उससे लेना देना नहीं। हम तुमसे पूछे, लेकिन तुम सामने वाले को फौरन गिरफ्त करते हो कि ऐसा तुमने बोला, वैसा तुमने बोला, तो हमने तुमसे ये पूछा अगर आला हजरत ने गलत लिखा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? तुमने कहा था कि कुफ्र का फतवा उस पर भी लगेगा। आला हजरत ने गलत लिखा ही नहीं है तो लगेगा क्यों? अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो तू गलत साबित करके दिखा आला हजरत की कोई बात। यही तो हम कह रहे हैं ना कि तो लगाना फतवा, लगाओ आला हजरत पर फतवा, और वो आला हजरत की तहरीर दिखा या तर्जुमा दिखा। अबे कंजुल ईमान खोल, एक ही अभी बात कर रही है, मैं खाने पर बैठा हूँ, एक ही बात मैं तुमसे पूछता, बाद में फिर तुमसे। कंजुल ईमान खोल सफा, हमारे पास तो समझो कि सफा जो है ना चार है, तुम्हारे में सफा। जी जनाब, कॉल काट क्यों दिया जनाब आपने? हम आपको पहले कह दिए थे हमारे में बैलेंस कम है, हम आपको बोले थे, इसलिए बैलेंस मेरे पास नहीं है कि मैं फिर कॉल लगाऊं। मैं आपको पहले कहा आजकल जो है ना फ्री वाला जो है मामला चल रहा है, बैलेंस वाला मामला नहीं चल रहा है जनाब। सुनो तो भाई, ये नहीं, फ्री, खुदा की कसम खा के बोलो, खुदा की कसम खा के बोलो कि तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, तुमने फोन काटा नहीं था। देखिए दूसरे मोबाइल नहीं, अल्लाह पाक की कसम खाओ, अल्लाह पाक की कसम खाओ और बोलो कि तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, तुमने फोन नहीं काटा था। खुदा की कसम खा के बोलो। हम खुदा का कसम खा लेंगे, लेकिन एक बात तुमसे हम पूछते हैं। नहीं, पहले खाओ और कहो हाँ खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, मैंने फोन नहीं काटा, ऐसा बोलो। अरे हम बोल रहे हैं ना, तुम पहले सुनो ना। हम तुमको ये कहते हैं कि खुदा की कसम, क्या अल्लाह की कसम, इसलिए खुदा अरबी का लफ्ज, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि मैं तुमको शुरू में कह दिया था मेरे में बैलेंस कम है, ये बैलेंस वाला मोबाइल है, थोड़ा मेरा दूसरा मोबाइल है। मैंने जो कहा है उसको पूरा करो। मैंने कहा कि तुम इस तरह बोलो जैसे मैंने कहा वैसा बोलो। तुम अल्लाह की कसम खा के बोलो कि मैंने फोन नहीं काटा, बैलेंस खत्म हो गया था।
अल्लाह की कसम मैंने फोन नहीं काटा, बैलेंस खत्म हो गया और तू माई का लाल है तो मोबाइल पर बना गया। ठीक है, मैं अगर बना तू हुआ अपने हूँ। बाप का हलाली औलाद है तो मोबाइल पर बना गया। जबान दराजी मत कर, बदतमीजी मत कर, औकात में रह के बोल, सड़े हुए बदबूदार बुढ़े। अबे तू सुन, इसलिए कि तू फौरन जो है ना, तू फौरन कसम खिलवाता, इसलिए कि तू सामने वाला को काफिर भी कहता। क्या काफिर अल्लाह का कसम खा लेगा तो मुसलमान हो जाएगा? मैंने तुझे, अबे बुढ़े, मैंने तुझे कुछ कहा अभी तक? अबे कुत्ता कमीना, शुरू में तू खुद बोला है। बहरहाल तो मुझे नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा कि तू आलिम में सड़े हुए। अरे कमीना, हम आलिम है ही नहीं। अभी तो हो रहा है मैं आलिम हूँ, मैं मौलवी हूँ। तो मैंने बोला ना, आपको मौलवी बता रहा था, मौलवी। कौन? अरे तू जाहिल, इसलिए कि तू तो आलिम भी नहीं है। तू अपने आप को कहता मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो भीख मांग लेना चाहिए था तुमको ड्राइवरी करने से। पढ़ लिख के तू ड्राइवरी कर रहा है। हमेशा सबको बोलता है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे मौलाना मत कहो। तो सबसे बड़ा कमीना तो तू अपनी कलंक करता है, तू बरेली के नाम पे। तो दूसरे को बोलता तू रे। अच्छा, तू बड़ी जल्दी रंग बदलने लगा। थोड़ी देर पहले तेरा फोन आया था, तू अपने आप को हिंदू बता रहा था, जाने क्या बता रहा था, पता नहीं क्या कुछ कह रहा था ना। अरे भाई मैं हिंदू काहे बताऊंगा? तू हिंदू जानता है तो फिर खुदा की कसम कैसे खिलवा सकता है? किसी हिंदू से तू खुदा की कसम खिलवा सकता है? ऐसा तू मुसलमान है? चल बहरहाल तू अपना एतराज रख, आला हजरत। ये बहरहाल के बच्चा, अभी तू क्या बोला है कि खुदा की कसम खा? तो क्या हिंदू अगर सामने वाला को जानता तो क्या उसको खुदा की कसम खिलवाएगा? नहीं, तूने अपने आप को देवबंदी मौलवी कहा और तूने अपने आप को आलिम कहा। सुन, तूने जो आला हजरत घामड़ तू आला हजरत पर जो तंज कर रहा था ना, उसको बयान कर, ठीक है? इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत रपक। तो वही मैं तुमको करने के लिए तो मैं तो शुरू में तुमको कह दिया था भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है। अबे घामड़ कहीं के, बैलेंस था कि नहीं था? अब मैंने वापस किया ना फोन तुझे, तो तू बता आला हजरत पर क्या कह रहा था, क्या भौंक रहा था? भौंक। हाँ, कंजुल ईमान खोले हुआ है, इसलिए कि तुम्हारे पास तो चेले सब बैठे हुए वहां पर। तू तो अकेला है नहीं। तू कहता कभी मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो कभी यहाँ हूँ, तो कभी वहां हूँ। समझे नहीं? चेला मेला है, सबको बोलो कि कंजुल ईमान खोले। कंजुल ईमान नहीं, कंजुल ईमान। कौन सा पारा है, कौन सी सूरत है? अरे शुरुआती खोलो ना यार, सफा 4 या 5 खोलो। सूर्य बकरा का? हाँ, सूर्य बकरा का। अच्छा, हाँ देखो, इसमें जो फायदा नंबर 13 है ना, यानी कि हर तर्जुमा में फायदा लिखा जाता है ना, फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3। हाँ, बोलो। हाँ, वो फायदा नंबर 13 में जो नीचे आकर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि कुरान पाक में जा बजा अंबिया किराम के बशर कहने वालों को काफिर कहा गया है। अच्छा, आगे बोलो। तो कुरान में बशर कहने वाले को काफिर का, अगर कोई शख्स आदमी का लफ्ज या बशर का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल करे, या बशरी बोले या बशर बोले या आदमी बोले, तो इस रिवायत के हिसाब से वो शख्स काफिर हो जाएगा। पागल उगल हो गए हो क्या तुम लोग? घामड़ हो। अबे घामड़ के बच्चे, तू अपना मेन मकसद बता, तेरा मेन मकसद क्या है? हम तुमसे ये इतना पहले पूछना चाहते हैं, उसके बाद हमारा मकसद तो बहुत है। तो पहले इसका बता। अच्छा, तू ये बता कि तू नबी को बशर, जो नबी को बशर का कुरान में उसको काफिर का, तो तुम उसको क्या मानोगे? बोलो। अच्छा, तूने रसूल तुम काफिर कहते हो, तो उसका बात तुम्हारे तर्जुमा से हम बोल रहे हैं। बहुत गुस्से में लग रहा है घामड़ कहीं के, बहुत गुस्से में लग रहा है तू। जरा तसल्ली में होके बात कर, खामोशी से, प्यार से और बगैर घबराहट के। घबरा मत इतना, नूर हसन से बात कर रहा है, ठीक है? दुनिया देवंदियत पर जलजला आ रही है। सुन, अंधेरा हसन भी आ जाएगा ना, और उजाला हसन भी कुछ हो जाएगा। नूर कुछ नहीं है। तो नूर के नाम पे जो है ना क्या अंधेरा है? सिर्फ चिल्ला के जो है ना तू फोन कर लेता, यूट्यूब चैनल बना लिया, जो चाहता है लिख देता है ना, तो वो सबको समझ लिया है तू। और 4-5 गोष्ठी भाषण दे देता है तू। अच्छा, तेरी मिर्ची क्यों लग रही है फिर इतनी? हाँ, तेरे मिर्ची क्यों लग रही है इतनी? देखिए सुन, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। अबे घामड़ कहीं के, सवाल करेगा? तू भी सवाल कर, मैं भी सवाल करूंगा, ठीक है? एक सवाल तू कर, एक सवाल मैं करूंगा। मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा। अबे गदुल लजीना गधा, तू दूसरे को ढामड़ बोलता है तो सुनना तू पहले नहीं था।
हसमत, हिजरे के जैसा हसमत, जवाब देने के बारी आती है तो हिजरे के जैसा हंसता है। लीजिए जनाब हजरात, ये है देव का बंदर, तुम्हारा दावा है कि देव की बंदगी करने वाला। हंसता काहे के लिए? मैं तेरी घबराहट पर हंस रहा हूँ, पागल कहीं के। तुझे किसने जो है तालीम हासिल कराई है, हैं? किसने तुझे पढ़ाया है? जिसके पास मैं पढ़ा हूँ ना, समझे कि नहीं? बोल बोल। तू तो अपने आप को कहता मैं आलिम नहीं, मगर तेरे बड़े बड़े मुफ्तियों के बैंड बजाता हूँ। अहले सुन्नत के जो तालिब इल्म है ना, अहले सुन्नत के जो तालिब इल्म है, जो आम इंसान है, कुत्ते का काम होता है सिर्फ भूखना, किसी का नहीं सुनता है। तो वही हाल है तुम्हारा। तुमसे जवाब पूछा जाए ना तो तू उल्टा सवाल करता है। अबे घामड़ कुत्ते की औलाद, भौंक तो तू रहा है ना, मैं थोड़ी भौंक रहा हूँ। मैं तो प्यार से तेरी बात को सुन रहा हूँ, तू अपना एतराज ही नहीं रख पा रहा 2.5 घंटे से। अरे क्या कितना नंबर का झूठ बोलते? मैं 2.5 घंटे बोलते, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक हो जाएगी। मैंने एक मुहावरा बोला है गधे। मैं के बच्चे, यही तो मुहावरा तू पकड़ता है। अगर तू अपने बाप का हलाल औलाद बोल, मैं 2.5 घंटे। अबे साले सुअर, यही सिखाया तेरी जमात के लोगों ने, हैं? और कुछ हो तो कसम खिलवाओ खुदा का। मैं तो इतना नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो प्यार से तेरी बात को सुन रहा हूँ ताकि तू अपनी बात को कह सके। साले सुअर हरामी। अबे सुअर का बच्चा तू खुद होगा। यही तो चीज है तुम्हारे अंदर कि जहाँ नहीं, अब जवाब नहीं बनेगा। हम तुमसे इतना पूछे है, तूने कुछ भी अभी एतराज नहीं रखा, तू अपना एतराज रख। तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता है? नूर मानता है कि बशर मानता है, या दोनों मानता है, या एक चीज मानता है? बोल क्या मानता है तू? सुन ले, हम तुमसे जितना सवाल किया पहले तू इसका जवाब दो, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या मानता हूँ, उसके बाद तू फतवा लगाना। यहाँ पर कंजुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कुरान में जा बजा ये लिखा है कि अगर कोई नबी को बस अंबिया को बशर कहे तो वो काफिर है, कुरान ने कहा है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस कंजुल ईमान के हिसाब से अगर कहीं पर आला हजरत में गलत लिखा हो तो क्या वो काफिर होगा? माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अबे शैतान के बच्चों, तुम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह का बशर बताते हो, क्या हमारे नबी तुम्हारी तरह बशर हैं? अबे तुमसे जो पूछ रहे हैं उसके बाद में जवाब दूंगा तुमको। अबे नज्द की नाजायज औलाद, जिना की पैदावार, जमातियों की मेहनत के नतीजे, जो मैं कह रहा हूँ उसका भी जवाब दे दो। हमारे किस आलिम ने सुन गधे की औलाद, हमारे भड़वे। लीजिए जनाब, ये है देव का बंदर, ये देवबंद का मौलवी है। ये मौलवी नहीं है, ये मौलवी है। मौलवी के माना होता है गधा, तो ये देवबंद का गधा है। और ये शैतान इतने टाइम से बात कर रहा है, अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये वो शैतान सुन, अब हराम के पिल्ले, तू जब से अपनी बात को ही नहीं कह पा रहा, अब मेरी बात सुन। ये वो शैतान है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर मानते हैं, नूर नहीं। ये वो हरामी है, ये वो जिना की पैदावार है। अभी इतने टाइम से मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ ताकि ये अपनी बात को बता दे, कह दे, ये नहीं बता पा रहा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ खाली नूर माने, बशर ना माने, वो भी काफिर है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ खाली बशर माने, नूर ना माने, वो भी काफिर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, मगर ये शैतान अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा है इतने टाइम से। मैंने अपना अकीदा बता दिया, अपनी जमात का अकीदा बता दिया। ये हरामी सुअर की औलाद ये कितने टाइम से बदतमीजी कर रहा है, आप हजरात मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं इसका दूसरा ऑडियो भी आपको सुना दूंगा और इंशाल्लाह पहले वही डालूंगा, फिर इसके बाद ये वाला ऑडियो आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। और इस हरामी की औकात आप देख लें कि ये शैतान जिना की पैदावार, ये अपनी बात को नहीं कह पा रहा है कुछ भी। अब मैं इससे कह रहा हूँ कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानता है कि बशर मानता है, तो ये शैतान का बच्चा ये अपने आप को कुछ बता ही नहीं पा रहा है, अपना अकीदा बयान ही नहीं कर रहा है। ये जिना की पैदावार पहले तो अपने आप का अकीदा ही नहीं बता पा रहा था कि ये किस अकीदे से ताल्लुक रखता है, किस जमात से ताल्लुक रखता है। बरेली का नाजायज औलाद है तू, बरेली का नाजायज औलाद है कि हमारे पास नहीं सुना, कुत्ते के जैसे भूखना शुरू कर दिया। अबे हराम के पैदावार, जमातियों की मेहनत के नतीजे। कितना टाइम दिया था तुझे मैंने? कितना टाइम दिया था? कितना पूछ रहे हैं? क्या ये बात जो लिखा गया कि जो नबी को बशर माने, तुमने ये कहा कि नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, तो ये खुले हम बोलो ना, हम नबी को दोनों चीज मानते हैं। हाँ, दोनों मानते हैं हम। हमारे किस आलिम ने कहा है कि हुजूर जो है खाली बशर है?
या तो खाली यहाँ पर नूर है? तर्जुमान में क्यों लिखा है? अबे जीना की पैदावार क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? चल बता मुझे, साबित कर। अबे हराम खोर, तू देख किताब देखने, इसलिए तो मैं तुमको बोला हूँ कि कंजुल ईमान खोल रहे, हराम खोर के बच्चा, तू तो सुनता नहीं है। कंजुल ईमान मेरे पास खुला हुआ है, शैतान के बच्चे। तू आयत बता, कौन सी आयत का तर्जुमा देखना है? कायदा नंबर 13 के तहत देख, कहीं लिखा हुआ है कि जो कुरान में जा बजा अंबिया को बशर कहने वाले को काफिर कहा गया, ये लिखा हुआ है। पहले ये देख कुत्ता कमीना, उसके बाद भूखना खाली कुछ। सुअर की औलाद साले, तुझे किसने आलिम बनाया बे जाहिल? हराम के नुस्खे, जिना की पैदावार, मोहल्ले वालों की मेहनत के नतीजे, किसने आलिम बनाया तुझे बे? देख किसने आलिम बनाया तुझे? ये तो बरेली को गाली सिखाया। साले मेरी जबान को कोई नहीं पकड़ेगा, समझा? मगर तू आलिम है साले, तूने मुझे मजबूर किया है, समझा? हरामी, जिना की पैदावार तूने मजबूर किया है, मैं किसी को गलत नहीं कहता। अबे हरामी साले सुअर, जिना की पैदावार यही सिखाया तेरे जमातियों ने, हैं? साले मौलवी हो गया तू, और तुझे बोलने का ढंग नहीं है, साले बदतमीजी करता है। हरामी, हराम का पैदावार होता है, खुद हराम का गाली बोल सकता है, तू हराम का पैदावार, इसलिए हराम की गाली तुमको याद है? साबित कर कहाँ? हम वाह भाई वाह। और खैर, तू जो अपनी जबान से बक रहा है, इंशाल्लाह आवाम फैसला करेगी, ठीक है? वो देख ले, आवाम देख लेगी कौन सही है कौन गलत है। चल तू बता, कौन सी आयत का कौन सा तर्जुमा है? बता, मैंने कंजुल ईमान खोला हुआ है, ठीक है? कौन सी आयत का कौन सा तर्जुमा है? अबे फायदा छोड़ तू अभी, ठीक है? तू आयत बता, आयत कौन सी है और कौन सी आयत का तर्जुमा है? तर्जुमा अभी बाद में हम तुमको बताएंगे, पहले हमारा तू आयत नंबर बता, ठीक है? और उस आयत का मैं तर्जुमा देखता हूँ। तर्जुमा में अभी फिलहाल अभी मैं नहीं बता रहा, मैं तुमको एक अबे घावर कहीं के शैतान, पहले तस्वीर और उसके बाद तुम तर्जुमा दिखाएंगे, तो तू तो सुनने के लिए तो तैयार नहीं है, इतना देर से चिल्ला रहा है तू। जब तुम्हें एतराज नहीं करना आता यार, क्यों करते हो एतराज, ये बताओ जरा। जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, जब तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, जाहिल के जिहालत दिखलाने नूर हसन के सामने ही आते हो। अरे नूर हसन जो है ना गधे के जैसे चिल्लाता, हमको मालूमात हुआ है कि कुत्ते के जैसे चिल्ला रहा हूँ। चलो देखते हैं कुत्ते के अंदर क्या सिफत है, तो हम तो देख लिए कुत्ते के अंदर गाली देने की सिफत है, लेकिन नाजायज बच्चा नाजायज जैसा गाली बकता है, तो वो तो बच्चा कभी इंसान के जैसा नहीं रहेगा, तो तुम गाली बक रहे हो खूब दे दनादन। यही जब तुमको सिखाया बरेली वालों ने कि ना सामने वाले को जो चाहो गाली देते रहो। वो तो तूने शुरुआत की है ना, मैंने तो नहीं की। वो तो तूने शुरुआत की है, मैंने तो नहीं की। हमने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत नहीं की है अपने वीडियो में खुद। तूने ही बदतमीजी की है, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, ठीक है? जो सामने वाला जिस तरह से बात करता है ना, उसी तरह से बात करता हूँ। और मैं गाली बताया ना, और ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि जो सामने वाले को गाली देता है, तुमने जितनी गालियां दी है, अगर वैसा हम नहीं है तो खुद हो जाएगा तू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। किसी के माँ को गाली देता है ना, जो किसी के माँ को गाली देता है, तो गोया तो वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। हमने तो तुमको इतनी गाली दी नहीं है। अच्छा, तो तू अब ये बता कि जो एक आम इंसान को गाली बके, आम आदमी को गाली बके, तो उसका हशर ये होता है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे, गाली बके, उन्हें बुरा भला कहे, उनकी शान व अज़मत को घटाए, उनके लिए कैसा मामला पेश होगा अल्लाह के नजदीक? वो क्या है? हमको ये पहले मेरी बात का जवाब दे दे, वरना बरेली शरीफ का 5 मुंह में भरा के ना नीचे से निकाल दूंगा। पहले मेरी बात का जवाब दे। अपनी नीचे से डाल लेना, तो दूसरे को कायला बोलेगा। जल्दी जवाब दे, जल्दी, सड़े हुए बुढ़े। हाँ यही तो है जो सिफत तुम्हारे अंदर। जवाब दे। तू नूरहा को जानता नहीं है, ठीक है? तेरे देवबंदियत के बड़े बड़े मुफ्तियों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर कर चुका हूँ, ठीक है? जलजला तारी है, तेरे मुफ्तियों के पैरों के नीचे की जो जमीन है ना, वो खिसक जाती है। हाँ, तेरे मुफ्तियों के पैरों पर जलजला है नूर हसन के नाम से। दुनिया में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से सही से बात करे। जैसे तेरे पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, तेरे बड़े बड़े मुफ्तियों के ऊपर भी इसी तरह के पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे नूर हसन, एक किस्म से पूछा हम। पूछ, मैं भी पूछूंगा, तू पूछ, मैं भी पूछूंगा। मेरे सवाल का जवाब देगा तूने क्या कहा? पहले अभी जवाब दे, पहले मेरी बात का जवाब दे। तू भी पूछ रहा है ना, मैं भी तुझसे कुछ पूछूंगा, जवाब देगा? नहीं, तू पहले क्या कहा है कि हम बड़े बड़े जो है ना देवबंदी के मुफ्तियों को जो है ना क्या हम बैंड बजाए। हाँ तो बिल्कुल। हिंदुस्तान में कितने हैं? बरेली कितने हैं? हाँ ये बताओ तो।
तो क्या तुम चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के पूरी दुनिया बरेलवी है। तुम चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के पूरी दुनिया बरेलवी है। पूरी दुनिया बरेली, जो हमारा अकीदा है वही पूरी दुनिया का अकीदा है। तुम जैसे चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के। हाँ, तो इसलिए जो है ना, बरेली में मालूम है कि सब होगा, अच्छा बच्चा होगा बाप का, और अपने माँ का अच्छा औलाद होगा, लेकिन तू बिगड़ा निकला, इसलिए तो ऐसे तरह अल्फाज जो इस्तेमाल, सुनो, सामने वाले से कभी भी बात करो ना, गाली गले नहीं चलता है कभी। अबे मैंने बदतमीजी की कि तूने बदतमीजी की? अबे हाँ, तो वही तो सुन लेना ना, बदबूदार गालियाँ, इतना बुरे गालियाँ औकात नहीं दिए हैं। अबे शैतान खाली इससे ही कुछ नहीं होता है, ठीक है? साले भौंकता जा रहा है काफी टाइम से। चलिए बताते हैं, बगैर वुजू, सुन बगैर वुजू, बगैर अबे सुन, बगैर वुजू, अबे सुनना यार, कैसा मौलवी है तू? बगैर वुजू, बगैर तयम्मुम के, बगैर किसी उज्र के नमाज पढ़ने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? अरे तुम्हारे आला हजरत ने तो पहले जवाब दे, बगैर वुजू, बगैर तयम्मुम, बगैर किसी उज्र के, ठीक है, रंग बदली, नमाज पढ़ने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? अबे तो सुनना तू, अबे घामर, तू अपनी बात ही नहीं कह पा रहा 2.5 घंटे से, ठीक है? पहले अब तू मेरी बात का जवाब दे कि जो लोग पैदाई हुआ इसलिए तुमको 2.5 घंटा, जो इंसान घामर, चुप सुअर की औलाद, नज्म की नाजायज औलाद, चुप, मेरी बात का जवाब दे, कुत्ते की औलाद। मैंने तुझको पूछा है कि जो शख्स किसी को बगैर वुजू, बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, ऐसा मौलवी मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? जवाब दे। हमने तुमसे पूछा है कि कंजुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम अंबिया को बशर कहने वाले को काफिर कहा है। अगर कोई तुम्हारे बरेली का आलिम अगर किसी अंबिया को बशर लिखे तो उसको तुम काफिर कहोगे? पहले ये सवाल हमारा शुरू हुआ, इसका तुम जवाब, उसके बाद मैं बात करूंगा। ये जवाब शुरू से हो रहा है, लेकिन इसका तू जवाब नहीं दे रहा। कभी नबी के बारे में बात, पहले इस बात पर आ, उसके बाद आगे की बात चलेगी। तो वो आयत बताना मुझे, वो कौन सी आयत है? घामर कहीं के, वो आयत कहाँ बता रहा है तू? पहले क्या कह रहा हूँ मैं, कहाँ लिखा है, कौन सी आयत है? आयत बता मुझे कौन सी। मैं कुरान पाक खोला हुआ हूँ, मैं कुरान पाक खोला हुआ हूँ, वो कौन सी आयत है? आयत का जवाब। अबे घामर कहीं के, मैं तुझसे आयत पूछ रहा हूँ कि इधर उधर को भाग रहा है? आयत बता, आयत बता, आयत। पहले जो तशरीह में सफा 4 पर, या हमारे पास जो 4वां सफा पर है, तुम्हारे पास अगर इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज, समझा कि नहीं? स्क्रीनशॉट भेज इसी नंबर पे। अरे ये छोटा मोबाइल, अगर बैलेंस वाला फ्री वाला रहता तो हम क्या कर जाता? पागल हो गया क्या तू? पागल हो गया क्या? नूर हसन के सामने जलील होने आया है? कमीना नहीं तन, अगर तू खुद बोला था ना कि आज के दौर में जो है क्या बैलेंस नहीं फ्री वाला चलता है, तो फ्री वाला रहता तो क्या बैलेंस कर जाता? अगर हमको बात नहीं करना था तो हम काट दिए रहते। बेवजह के मेरे पैसे बर्बाद करा था बे, हाँ? बेवजह का मेरा बैलेंस खराब करा रहा है शैतान नहीं के। कुरान पाक की वो आयत बता, कौन सी आयत है वो? अबे पहले हम तुमको आयत बताएंगे, नहीं बताएंगे तब ना तू, पहले हम। अरे तू बता ना, मैं देखूं ना क्या कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। शैतान धोखा देना है नूर हसन को। आला हजरत के तर्जुमे में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं भी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सुन, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। ये हमारी पूरी जमात का अकीदा है। अब तेरा क्या अकीदा है तू भी बता। एक मिनट के अंदर जो लिखा है इसको तू क्या कहता है? पहले अरे सुन तो, हमारे कहीं के ऐसे थोड़ी बात होती है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तेरी बात को सुना और जवाब दिया, अब तू मेरी बात को सुन और जवाब दे। तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर दोनों मानता है, या खाली बशर मानता है, या खाली नूर मानता है? और तेरी जमात क्या मानती है? ठीक है, अपना और अपनी जमात का अकीदा बता पहले यहाँ, फिर आगे बात होगी इंशाअल्लाह। टेंशन क्यों लेता है? नहीं, तुम नूर और बशर दोनों मानते हो ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हम तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि कंजुल ईमान के सफा 4 पर जो लिखा है कि हम देखो क्या लिखा हुआ है, अब हम पढ़े तो बताते हैं तुमको। मुझे आयत क्यों नहीं बता रहा मुझे तू आयत क्यों नहीं बता रहा है? मुझे क्यों नहीं बता रहा है तू? आयत बता। अरे सुन, पहले हम तुमको आयत बताएंगे, पहले हुक्म तुमसे पूछेंगे, उसके बाद पागल है क्या? बात करने वाले को तू क्या कहता है? हाँ तू क्या कहता है? पढ़ेंगे तब हम बताएंगे ना।
हम भी ये जवाब दे देंगे कि पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, तो ये कोई जवाब हुई? हुक्म पहले तो लोग पूछवाता है ना, तो हम भी तुमसे पहले पूछ रहे हैं ना। अच्छा घामर कहेंगे तुमने काफी टाइम बसर कहने वाले को काफिर कहा गया, तो तू अगर कंजुल ईमान में कहीं गलत लिखा होगा तो क्या तू आला हजरत को काफिर मानेगा? ये पहले बोल, उसके बाद हम तर्जुमा तुमको दिखाते हैं। आला हजरत ने कहीं कोई तर्जुमा गलत नहीं किया है, ठीक है? पूरे जाहिर और सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। दुनिया देवबंदियत में अगर हिम्मत और जुर्रत है तो आला हजरत के तर्जुमे को गलत साबित करके दिखा दे, मैं दावा करता हूँ। आप ठीक है? तेरी पूरी अबे शैतान की नजदी नाजायज औलाद। हाँ तो ये सब बकवास बाद में करूंगा, ठीक है? ये सारी बकवास बरेलियों की सिफत में है। अबे नजदी सारी बकवास बाद में करना, तू आयत बता, फिर मैं देखता हूँ कहाँ लिखा है। देवबंदी झूठ ना बोले, धर्म नहीं चलेगा। देवबंदी धर्म में झूठ बोलना लाजमी है, जरूरी है, शर्त है, ठीक है? हाँ तो यही चीज तो कह रहा है, तुम्हारा तो एक ही चीज, लेकिन तू तो कमीना मानेगा नहीं। अबे शैतान के बच्चे, तू मुझे आयत बता ना, कुरान की कौन सी आयत है? तू डर क्यों रहा है? हम तुमको आयत न बताएं तब न, पहले तो ये बता कि ये तशरीह में जो लिखा है कि कुरान में जा बजा अंबिया को बशर कहने वाले को काफिर कहा है। अगर कहीं तर्जुमा में बशर लिखा होगा या आदमी लिखा होगा, बशर के माने आदमी आता है, आदमी लिखा होगा, तो क्या तुम इमाम अहमद रजा खां को काफिर कहोगे? पहले ये बोलो, उसके बाद। अबे शैतान के बच्चे, जब मैंने पहले कह दिया कि हमारी जमात का अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, तो फिर ये तशरीह लिखने वाले गलत का है लिखो। ये क्यों लिखा गलत? इसलिए कि तुमको जो है ना बीच में से कांटा निकालने की बहुत आदत है। नज्द की नाजायज औलाद, तुम जो कहते हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह हैं, जैसे हुजूर के बीवी बच्चे थे वैसे हमारे हैं, जैसे नज्द की नाजायज औलाद। कितने लोगों को मैंने जो है फोन पे भी जो है ये बातचीत में कहते हुए सुना है कि हाँ हुजूर तो हमारी तरह बशर हैं, जैसे हुजूर खाते पीते हैं वैसे हम भी खाते पीते हैं, जैसे हुजूर के 2 हाथ पैर हैं वैसे हमारे भी हैं, हुजूर के बीवी बच्चे थे हमारे बीवी बच्चे हैं, माज़अल्लाह। ये सब शैतान के बच्चों। क्या नबी के पास बीवियां नहीं थी? अरे नबी के पास बीवियां थी तो तुम नबी की होड़ करोगे? नहीं, वो चीज नहीं कह रहा। तू कह रहा है एक मिनट जैसा तू नहीं हो सकता। दुनिया भी, पूरी दुनिया में कोई इंसान नबी के क्या सहाबा के धूल के बराबर नहीं हो सकता। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली भी जो है ना सहाबा के जो है धूल के बराबर नहीं होता। तो नबी हमारा हाँ सुनो अब शैतान के बच्चे, अब सुन लो मेरी बात, तुम बात को समझ गए हो। हमारा जो झगड़ा है तुम देव के बंदरों से, वो इस बात पर है कि तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर हैं। झगड़ा जो है ना वो मिसलुकुम पे है, बशरियत पे कोई झगड़ा नहीं, ठीक है? बशर पर कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है मिसलुकुम पे। अरे तो मिसलुकुम का आला हजरत ने कहीं अपने फतावा में लिखा है कि अगर एक माने कि अगर मीमान के मतलब गलत निकल तो एक मतलब सही निकल तो लेना चाहिए, लिखा है कि नहीं फतावा रिजिया में? अबे वो सब कुछ लिखा है, मगर तुम ये बताओ, तुम आला हजरत ज्यादा समझदार थे कि तू उससे ज्यादा समझदार हो? अबे घामर कहीं के, तू जो आला हजरत पर फतवा लगाना है शैतान के बच्चे, तो तू आला हजरत पर फतवा लगा, या जो कुरान की आयत तू बता रहा है उसको बता। अबे समझते कुछ हो नहीं और आ जाते हो बकवास करने। नूर हसन के सामने जलील होना जरूरी है? किसी और के सामने जलील हुआ करो जाके। वो तो कह रहा है ना कि तुम जमीन की बात, इसकी तो बात सुनने का वैसा नहीं, इतना गाली बतना, इतना गाली तुमको सिखाया कि सामने वाला जब जवाब नहीं बने तो दे गाली देते रहो। अबे घामर इतना बोल रहा है तू, ऐसे में बोल रहा हूँ मैं तो तेरी बात को सुनता हूँ फिर बोलता हूँ, तो तू अपनी बात को तू पेश कर। तू एक मिनट, तूने अभी तक ये नहीं बताया कि तेरी जमात के लोग और तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर दोनों मानते हैं हमारी तरह, या तुम लोग खाली नूर मानते हो या खाली बशर मानते हो? अभी तक नहीं बताया। सुनो, हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह की मानता है ना नूर और बशर, सुन रहा हूँ। हम भी अल्लाह के नबी को नूर और बशर दोनों मानते हैं, लेकिन नूर से क्या मुराद है पहले इसको तो समझो तू। अच्छा, नूर से क्या मुराद है, जरा क्या समझते हैं आप नूर से, जरा बता दीजिए आप ही। ये वही चीज कह रहा है ना कि नूर से तू क्या समझता है जिसके कारण तुझे में इतना उतावला बना? ओहो, मैं उतावला बना हूँ? अच्छा, तू हुजूर को क्या मानता है? अरे लैंड पर है, घर से थोड़ा खाली। अबे घामर कहीं के, पहले बात कर, फोन रख दे एक तरफ, तू समझा? बाद में बात करो तो हम थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। हाँ बोल, देख हम घर का खून है, तुम्हारे जैसे नहीं है कि माँ बाप की कदर नहीं है।
समझे कि नहीं? अबे सामने वाले तुमको को हमारे कहना पड़ता है कि हम तुमको सामने हैं, बाद में बात करेंगे। तुम्हारे जैसा हमारे है नहीं कि तुम डायरेक्ट कहते किसी का भी फोन आता तो हम नहीं उठाते। इतने बेअदब हो गए, अदब सीखे नहीं हो कि कई बड़े का अगर घर का वाले का फोन आएगा तो उनको ये हम क्या कहते हैं, फोन पे आके थोड़ा देर रोक के कि भाई बाद में बात करेंगे, अभी काम में लगे हुए। तुमको हमारे नबी का अदब नहीं है और तुम मुझे अदब सिखाना आया है? हैं? तुमको कितना बता दिया, तुमने अपने मतलब से किताब पढ़ लिया तो नबी का अदब कह रहे हो। अबे तुम्हारा थानवी बेअदब था, गुस्ताख था, गुस्ताख रसूल था। अरे तो तुम्हारा अहमद रजा खान कौन से दिन शरीफ था, तो अगर उनको कह रहे हो तो वो अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के वली हैं, मोमिन हैं। अल्लाह के वली हैं तो मोमिन है, हाँ मुसलमान हैं। सुनो, आला हजरत मोमिन है ना? हाँ 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 हाँ, ईमान है ना? तो शाह इस्माइल शहीद तकबीरतुल ईमान लिखा है। अच्छा तो लिखा है ना? हाँ हाँ बोलो। तकबीरतुल ईमान में तुम्हारा ही है, कई जगह तुमने दलील दिए हो कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग कहते हैं कि उसने जो है तकबीरतुल ईमान में गलत लिखा है ना? अच्छा गलत लिखा है ना? बोल बोल बोल, आला हजरत ने भी उसकी वजाहत की है, बोल। वजाहत की है तो आला हजरत ने शाह इस्माइल शहीद को काफिर क्यों नहीं लिखा? तो हम नहीं कहेंगे, जो कहेगा उसको हम वो कहेंगे नहीं। तो उसने कुछ खुद क्यों नहीं लिख दिया? अच्छा, ये जो तू बदतमीज बोल रहा है तो तेरी जमात के बड़े बड़े अकाबिर भी बदतमीज बोल के गए क्या? हम किसको बदतमीज बोल रहे हैं? आला हजरत को जो तू बदतमीज बोल रहा है, तेरी जमात के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं उन्होंने बदतमीज बोला है। तो उन्होंने पीछे पलट के देख ले, मैंने बदतमीज नहीं कहा आला हजरत को। अबे घामर कहीं के। खैर चल, अब मैं तेरी बात का जवाब देता हूँ, सुनेगा? हिम्मत है? कलेजा है? अरे जो मैं शुरुआत किया हूँ, कलेजा थाम के सुन। शुरू किया हूँ, मतलब क्रिकेट के जैसे रंग मत बदल, जहाँ से मैं शुरू हुआ पहले इस बात पर फिर आगे के बात चलेंगे। क्या ये जो बात लिखी हुई है तो क्या ये लिखने वाले ने गलत लिखा है? कौन सा? तो ये पहले हमको बता, कौन सी? उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कौन सी? तकरीर जो किया है तो ये बात गलत लिखा है और इसकी अरे घामर गलत नहीं लिखी है, सही लिखी है। जहाँ वो है वो ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर कहते हैं या जो है माज़अल्लाह तंज में शान और आजमत घटाने के लिए बशर बोलते हैं, वो लोग काफिर हैं। अरे अंबिया जो हैं वो बशर ही हैं, ठीक है? रजुल हैं, मर्द हैं। समझा? घामर कहीं के तुम जो अपने हुजूर को शैतान नजदी, तुम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह का जो बशर बताते हो, इस चीज पर झगड़ा है। क्या हमारे नबी तुम्हारे जैसे शैतानों की तरह बशर है माज़अल्लाह? अरे तो तुम हाँ बोलना, तेरी तरह बशर हैं हुजूर? 50 आदमी मिलके जो है ना ये किया हुआ है। अरे हुजूर तेरी तरह बशर हैं, ये बता। देखो, अरे हुजूर तेरी तरह बशर हैं, हाँ नामा जवाब दे। या तो क्या नहीं है तो फिर मिसलुकुम का झगड़ा नहीं, और झगड़ा है मिसलुकुम का ही, बशर का कोई झगड़ा ही नहीं है। हदीस सुन, एक तर्जुमा मैं तुमको सुनाता हूँ, इसका फिर हमको मतलब समझा देना, तो फिर हम आगे का फैसला करेंगे। बोल। सूरह कहफ में लिखा है ना, अना बशर मिसलुकुम। सूरह कहफ में लिखा है ना। पूरी आयत पढ़ना, रोक क्यों रहा है, काट क्यों रहा है? ये सुनना, कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, ये लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ पढ़ी ना पूरी आयत। कंजुल ईमान से तू हमको थोड़ा तर्जुमा सुना देता, हम कंजुल ईमान सामने खोले हुए हैं। अच्छा इसमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहलवाया, इसकी हिकमत जानता है तू? अबे हिकमत से बच्चा तू बहुत हिकमत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के ड्राइवर भी देव के बंदरों के बड़े बड़े मुक्तियों पर भारी है। नूह हसन के नाम से दुनिया देवदत्त में ज़लज़ला पैदा हो गया है, ठीक है? मालूम था कि में जो है ना भूखने वाले पैदा हुए, इसलिए तुमको भूखने के लिए। अबे कुत्ते की औलाद, तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, मगर नूर हसन के सामने कभी भी वो अपने आप को बगैर जलील किए नहीं लेके गए। सुनो, ड्राइवर आदमी का सामने होता, रास्ता चलते हुए किसी को भी गाली दे देना। कोई तन मारता है तो उसको भी गाली देता, इसलिए तू गाली वहां से सीखा। पहले तो इसकी हिकमत बता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहलवाया, खुद क्यों नहीं कहा? दूसरी बात, ये कहलवाने की जरूरत क्यों पेश आई थी? जरा इसकी हिकमत मालूम है तुझे? सुन बे बुढ़े, सड़े हुए बुढ़े बदबूदार,
यहाँ तक बदबू आ रही है, यहाँ तक बदबू आ रही है। इसलिए तो तमाम घर में पैदा हुआ होगा। अबे तमाम देवबंदी अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रे नाचिस से कमतर है, चमा से ज्यादा जलील है। तेरा थानवी भी, ननोतवी, गंगोही, अमेठवी, सब के सब, और तू भी। सुन ले, एक चीज मैं नूरा तुमसे ये पूछता हूँ, तुझे ये बात पता है? सुन ले। हाँ बोल। ये जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, हाँ बोल। एक ही बात पे रहे, एक ही बात पे रहे, ठीक है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, जो तूने आयत पढ़ी है उसी पर बहस करते हैं। चारों तरफ मत भाग, चारों तरफ मत भाग। अरे हम नहीं भागते, तू ही तर्जुमा करके हमको पता है कि हम अपने जैसे बशर, मेरे जैसे बशर में क्या लफ्ज होता पहले ये बता, पहले तर्जुमा कर। हमारे सामने कंजुल ईमान खुला हुआ, हम भी तर्जुमा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कहलवाया है, हाँ, तो किसके सामने कहलवाया था मालूम है? तर्जुमा पहले कर, तो पहले ये बता कि किसके सामने कहलवाया। अबे पहले तू तर्जुमा कर। अरे फिर वही बात में बताऊंगा किसके सामने। बोलना, किसके सामने कहलवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जरा बता जल्दी। अबे तुमसे हम क्या पहले तर्जुमा करना, उसके बाद हम बताएंगे ना किसके सामने कहलवाया। अबे घामड़, पहले तुझे पूरी तहकीकात तो बता दूं मैं पहले। ये अल्लाह पाक ने जो कहलवाया है अपने महबूब से, किसके सामने कहलवाया और खुद क्यों नहीं कहा? कहलवाने की जरूरत क्यों पेश आई थी, जरा बता। मेरे आका सल्लल्लाहु, अरे पागल कहीं के बोलता क्यों इतना? जवाब दे जो मैं पूछ रहा हूँ। इतना 1 घंटा से तू तो गालियां बक रहा था, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। हाँ, तू बोलेगा 1 घंटा से बातें नहीं हो रहा, तो जैसे तू 2.5 घंटा से अटका हुआ कि 2.5 घंटा से तू, जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। अरे कुरान की आयत का मैं करा तुमसे तर्जुमा करने के लिए, बाद में तू जो पूछना हो पहले तू तर्जुमा कर, क्या लिखा हो उसमें ये कर। अगर है माइका लाल है, मैं तो पहले तर्जुमा कर उसका। कह रहा तर्जुमा करने के लिए तो झूठों का नाटक कर रहा है तू। किसके सामने फरमाया, किसके सामने फरमाया, तो फरमाया क्या? जब कुरान लेके जिब्राइल आए, अल्लाह के नबी के सामने आया है, तो अल्लाह नबी को मुखातब हो रहे हैं। जब नबी को मुखातब हो रहा है और उसका क्या मकसद, आगे चलेगा, पहले तू तर्जुमा कर। अरे मैं पहले तुझे डेफिनेशन तो समझ में आए कि ये कहलवाने की जरूरत क्यों पेश आई थी, हैं? अरे डिफिनेशन के बच्चे बहुत, तू तो कहता हम जाहिल आदमी है, तुमको कोई मौलाना कह देता है तुमको मिर्ची पीछे से लग जाता है, तो तू तो कहता कि हम जाहिल आदमी है। तो जाहिल आदमी तो जो है ना क्या जो हो सकता है। अबे आयत पढ़ने में तूने डाका मारा, घोटाला किया, डंडी मारी तूने आयत पढ़ने में। मैंने तुझसे कहा कि आयत पूरी पढ़, तो तूने बाद में जो है पूरी अब वो आयत पढ़ी, ठीक है? पूरी आयत नहीं पढ़ी है। सुन, अरे हाँ सुनना, अरे सुनना, जो तूने इन्नमा अना बशरुम पढ़ा था ना खाली तूने, हाँ बोलना तो, हाँ तो फिर बाद में तूने पढ़ा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा, ठीक है? कुल ए महबूब, आप फरमा दीजिए इन काफिरों से, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम्हारे ही जिन्स का एक इंसान हूँ, हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसके सामने कहलवाया? नूर हसन, पहले तू मेरी बात का जवाब दे घामड़ कहीं के, कौन लोग थे जिनसे हुजूर ने फरमाया? अरे तू जायज औलाद है तो पहले तू हमारा बात सुनना। अरे बिहारी, तर्जुमा कर तू, मुझे पहले घामड़ कहीं के, तू मुझे ये बता किन लोगों में से तर्जुमा कर, क्या लिखा हुआ है? अबे काफिर लिखा हुआ, तू काफिर जो पढ़ रहा है, क्या काफिर लिखा हुआ उसमें? मैंने तुझसे जो पूछा है उसका जवाब दे। मैं कह रहा हूँ कि किन लोगों के सामने कहलवाया, मुसलमानों से कहलवाया कि मुशरिकीन से कहलवाया? हाँ, अब ये चीज किसके सामने कहलवाया, तो अब तो तुम्हारे कंजुल ईमान में क्या लिखा हुआ हो तो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले तू इसका तर्जुमा कर देना भाई। अरे तुमको क्या होता है? मैंने किया ना तर्जुमा के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए महमूद, जो तर्जुमा सही लिखा हुआ है, जो तर्जुमा सही लिखा हुआ तर्जुमा बोल। अच्छा, तर्जुमा गलत क्या है? नहीं, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, जो लिखा हुआ वो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अच्छा, ये सूरत, अच्छा सुन, सूरत कौन सी है? लो ये भी तुमको नहीं मालूम? बोल, हाँ बोल, सूरत कौन सी है? अरे आयत मैंने पढ़ा, तू तो, अरे आयत मत पढ़, तू सूरत बता, सूरत कौन सी है? अरे सूरत कहाँ है? सूरत है। अच्छा आयत नंबर? अरे आखिरी आयत,
आखिरी आयत। इतना भी बता रहा हूँ, अब इससे पता चला कि तू सही रुक जा। कहता कि मालूम नहीं चाहिए कहाँ से खा जाए अल्लाह बेहतर जाने। मेरा खाना वो तो तेरी जिहालत तो सामने से दिख ही रही है इंशाल्लाह। और अरे ऐसा हम- जलील ऐसा जलील हुआ है तू कि तेरी और- जिहालत का चर्चा होगा इंशाल्लाह। तुमने गाली देने से जो है ना कुछ कमाल नहीं हो जाता है। अरे मैंने गाली देना तो बाहर भी जानता है। बदतमीजी तूने शुरुआत की, ठीक है। और तू अभी भी मेरी बात को सही से नहीं सुन पा रहा है, समझा? तेरे बात तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हम जो पूछे पहले इसका जवाब देना, तुम्हारे मान में मिट्टी का अलग का कुछ जवाब। वाह वाह, ये मौलवियत में पढ़ाया है। ये सब अल्फाज सिखाए तुझे घामड़, हम भी नहीं आती मौलवी होके साले तू ऐसा बोल रहा है शैतान। इतने गालियां बकरा ये तुम्हारे कौन से बात में पढ़ाया था कि सामने वाले को गाली बको। अबे तू जो कह रहा है ये क्या है? अरे तू जो ये बकवा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ये क्या है? नूर हसन तू ये बोल, हमको तर्जुमा करने आता नहीं है, ये बोल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अरे तो तर्जुमा कर दे ना भाई। सुन तो फरमाओ जाहिरी सूरत क्या है? जाहिर सूरत बशरी में तो मैं समझा, मैं तुम जैसा हूँ, फिर से करो, फिर से समझे? अरे फिर से तर्जुमा करो ना। तो फरमाओ जाहिर। सुनो अब आला हजरत आशिक रसूल थे ना, बोलो। तो आप नहीं लिख सकते थे कि आप फरमाओ, तू क्या था? हम जैसे कहना है नूर हसन तू क्या, तो ये तू क्या इज्जत का लकब हुआ, ये तो बताओ। हमारे हासिम को भी तुम्हारे आलिम ने लिखा। अच्छा, हमारे आलिम को एक मिनट अब कहोगे आज का माना एक मिनट अब तुमको ये अल्लाह ने बोला कि तूने बोला है? अल्लाह अपने महबूब को तू कह सकता है ना? अल्लाह अपने नबी को कह सकता है, अरबी का है, लेकिन ये तू नहीं है, ठीक है। तो फरमाओ जाहिर सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा बशर, मैं तुम जैसा हूँ, मुझे वही आती है। एक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, समझे? तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे। अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे। अब तो मुझे किताब खुला हुआ है, इतना देर से तो बहुत मेरे सामने किताब खुली हुई है, कुरान है। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास उस समय न होगा कुरान, इसलिए तुम लेट किए हो तर्जुमा। या मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुमने, लेकिन पहले जो कर रहे थे ये था, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ ना कि तो मैं तुम जैसा बशर हूँ। अच्छा सुन, तो कौन लोगों से कहा है, किन लोगों से कहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ तुझसे, किन लोगों से हुजूर ने अपनी जैसा बशर कहे? अबे घामड़ बकवास कर रहा है, कितना बड़ा अहमक इंसान है तू। मैंने तुझसे शुरू में ही पूछा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के सामने अपने आप को इस बात का इजहार करवाया कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ? किन लोगों के सामने कहा? मुसलमानों के सामने कहा कि मुशरिकीन के सामने कहा? अच्छा, ये कुरान जिस टाइम आयत नाजिल हुई, पहले तुम मुझे ये बता कि मुशरिकीन के सामने कहा, हुजूर ने जो है मुशरिकीन से कहा या जो है मोमिनों से कहा? तू ही बता दे, हमको तो नहीं मालूम है भाई। अरे घामड़ कहीं के मौलवी बन गया तू इतना बड़ा, तुझे यही नहीं पता? हम तुमको मुशरिकीन तुम्हारे जैसे जो है ना भोंकने वाले हैं नहीं। हम तुमसे एक एतराज था, इसलिए हमने तुमसे पूछा। हम सुन ले, हम भी कंजूल ईमान करते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। हमको एतराज लगा, हम कह रहे नूर हसन साहब ज्यादा वजाहत करने वाले हैं, तो चलो उनसे भी पूछ लिया जाए थोड़ा सा। इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी ये तो कि कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन कम बोल रहा है, ठीक है, और कौन घबराया हुआ है और कौन सुकून से बात कर रहा है, ये तो अवाम फैसला करेगी। मैं और तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? अवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह। तो मैं अबे सुनना, आप घामड़ कहेंगे, जनता से मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना ही खा रहा है, अभी तक खाना ही खा रहा है 2.5 घंटे से। अरे कमीना नहीं तो तू तो 2.5 घंटे से भी खाने, अबे 2.5 घंटे से भी खाने खा रहा है।
तेरे तू 2.5 घंटा में पैदा हुआ, तुझे 2.5 घंटा का घंटी मालूम है? अबे साले तेरी बदतमीजी को आवाम तेरी बदतमीजी को आवाम देखेगी इंशाल्लाह कि साला ये मौलवी होके इतनी जो है बदतमीजी कर रहा है। अरे हम मौलवी खैर, अब नहीं सुन है। बे मौलवी, तूने कहा ना कि मैं मौलवी हूँ। अरे तो मौलवी की कई किस्में होती है, हम भाई छोटे मोटे हैं, तुम्हारे जैसे जो है ना चिल्लाने वाले कुत्ते को चिल्लाने वाले छोटे मोटे। अच्छा कितना छोटा मोटा है? अच्छा कितना छोटा मोटा है? क्या क्लास से पढ़ी है तूने? हम इतने छोटे मोटे। अबे क्या क्लास से पढ़ी है तूने? हम पहले तुमको बताते हैं। अबे क्या क्लास से पढ़ी है तूने, ये बता। क्या क्लास से पढ़ी है? 1 2 3 4 5 क्या क्लास से पढ़ी है? पहले जवाब दे। तूने कहा ना छोटा मोटा हूँ, तो जवाब दे क्या क्लास से पढ़ी है? ना सुनना तो पहले। अबे जवाब दे क्या क्लास से पढ़ी है? तू तो जाहिल है, जाहिल को कहीं क्या क्लास से पढ़ी है ये बता। अरे तो जाहिल को बता कि क्या फायदा, क्या क्लास पढ़े हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आलिमियत में क्या क्लास होता है? तूने अपने आप को जो कहा कि छोटी मोटी, मैं छोटा मोटा आलिम हूँ, मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ। सुन ले, मैं पहले तुमको कहा मैं मकतब पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कंजुल ईमान में पढ़ता हूँ। अबे घामर कहीं के, तूने अपने आप को मौलवी कहा ना? कंजुल ईमान, कतरुल ईमान। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कंजुल ईमान लीजिए जनाब हज़रात, अब इसने कंजुल ईमान को माज़अल्लाह कतरुल ईमान कहा, इस हरामी ने, इस जिना की पैदावार ने। अब बताइए, क्या ये हरामी जिना की पैदावार, क्या ये अदब के लायक है? कभी नहीं। हम तुमको ये अल्फाज इसलिए बोले कि तुम्हारे मुंह से कुत्ते के जैसा गाली निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि नाजायज तुमको नाजायज वाली जबान इस्तेमाल करने लगे। तो वो तू जिना की पैदावार है, तो जिना के जुमले तूने इस्तेमाल कर दिए ना, जैसे हमारे नबी को तेरे बाप ने, वलीद इब्न मुगीरा ने माज़अल्लाह मजनून कहा था, है ना? तो तूने अपने बाप वाले जुमले इस्तेमाल किए, कंजुल ईमान को खतरुल ईमान कह दिया माज़अल्लाह। हैं हरामी की औलाद। देख रहे हैं जनाब हज़रात, अब इस हरामी से बात करने का फायदा ही क्या है? इतना टाइम हो गया बात करते हुए, कोई फायदा नहीं निकला। इसने 43 मिनट खराब करवा दिए।